God bless you, my dear students. Today I am going to start congruent triangles, brain teasers. First question is, tick the correct option. Triangle ABC congruent to triangle PQR. If triangle ABC congruent to triangle PQR, which of the following is not true? Remember, not true. इनमें से कौन सा सही नहीं है? दैट मीन्स कौन गलत है? लुक हियर, इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, that means angle A equal angle P, angle B equal angle Q, angle C equal angle R, and side AB equal side PQ, side BC equal side QR, and साइड AC इक्वल साइड PR. इस पे ध्यान दोगे. A इज इक्वल टू P, A इज इक्वल टू P, करेक्ट है. BC इक्वल QR, BC इक्वल QR, ये भी करेक्ट है. एंगल B इक्वल एंगल R, एंगल B इक्वल एंगल Q, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है? एंगल B इक्वल एंगल R. इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर है. क्यों? क्योंकि यहां इज नॉट ट्रू लिखा हुआ था. एंगल B इक्वल एंगल R इज नॉट ट्रू. टिक दिस आंसर. नंबर 3, एंगल B इक्वल एंगल R. नाउ, which of the following criteria is not true for the congruence of two triangles? Not true. We know that there are 4 congruence conditions: SSS, SAS, ASA, RHS. ASA can be written also as AAS. So there are 4 conditions: SSS, side angle side, angle और angle side, right angle, hypotenuse and side, RHS. Look here, SAS correct, triple S correct, double SA is not correct, not true. So SSS is the right answer. SSS. Triangle ART, triangle PEN. If both triangles are congruent, which of the following is true? Here true. Look here, angle A equal angle P, angle R equal angle E, angle T equal angle N, and side AR equal PE, side RT equal side EN, side AT equal side PN. So here again, ARPE correct. Angle R equal angle N. Look here, angle R and angle E both are equal, but it is angle R equal angle N. That means this is not true. AR equal PN, AR equal PE, not PN. Angle T equal angle P, angle T equal angle N, not P. These 3 are false. Only AR equal P is correct. Actually our answer we got first here. So write here AR equal PE. First option. Next, which of the following criteria will you use if triangle ABC is congruent to triangle DEF? If triangle ABC is congruent to triangle DEF and AB equal DE, AB equal DE, angle B equal angle E, angle B equal angle E, angle C equal angle F, angle C equal angle F,
criteria you have to select. This is angle, both are angles and sides. So you have two angle and one side. You can write like this, AAS or ASA. Angle, side, angle. When two angles are given, you can write ASA. Also remember, triangle ABC, triangle DEF, angle B is equal to angle E, angle C equal angle F. This side is included side, so it should be BC equal EF, but here it is given AB equal DE, AB equal DE. Included side means when they have two angles on the opposite end point of the side. अगर साइड दिया हुआ है तो इसके दोनों किनारे का एंगल ये मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एंगल B और एंगल E इक्वल दिया हुआ है। एंगल A के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, D के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आप लोग ध्यान दोगे, किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल होता है और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को मिलाने पर 180 आएगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीन ही एंगल होता है और तीनों का सम 180 होता है। मान लेते हैं ये दोनों एंगल ऐड करने पे आ रहा है 150 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, 30 डिग्री। इधर भी ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ था, तो इन दोनों का सम आएगा 150 और 180 से माइनस करेंगे तो एंगल डी भी क्या आ जाएगा 30, तो ये भी 30 और ये भी 30। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बताया था यहाँ पर कि एंगल साइड एंगल को हम लोग एंगल साइड भी लिख सकते हैं। सो दिस इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑप्शन। Now next question. In the given figure, equal sides are marked. Equal side कौन सा बता दिया गया है? Which of the following triangles are congruent? यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल्स के बारे में, बट कौन सा किसका कॉन्ग्रुएंट होगा ये आपको बतलाना है। For this, ADB. I am starting from A, then we go to D, then B. AD इक्वल CB, ये दोनों साइड इक्वल है। यहां देखो ये 90 डिग्री है ना, एंगल A किसका इक्वल होगा C का, तो A के पास क्या होना चाहिए C, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ D, इसका मतलब ये गलत हो गया। नाउ एंगल A और C ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, करेक्ट, A की जगह C है। अब हम देखेंगे AD इक्वल CB, तो A के बाद D तो C के बाद क्या B, तो यहां देखो D के जगह क्या होगा, A के जगह C और D के जगह B, तो जहां D है वहां क्या है B, करेक्ट। तो AD इक्वल CB, अब क्या बच गया, लेफ्ट में बच गया B और राइट में बच गया D, तो B और D, D के जगह B और B के जगह D। ADB ट्रायंगल और ट्रायंगल CDB इधर से, ADB and here CBD, like this. This is the correct answer. When are two circles said to be congruent? कब हम दो सर्किल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? सर्किल में रेडियस होता है और इसी रेडियस पर सर्किल का साइज डिपेंड करता है। सो यू शुड राइट हियर two circles are said to be congruent when both have same length of radius. Next,
what is the side included between the angle M and angle N of triangle MNP? एक ट्राइंगल बनाओ MNP, angle M and angle N, these two angles. Then this side, ये हो गया साइड, साइड का इंड पॉइंट M और साइड का इंड पॉइंट N. साइड का नाम क्या है? MN. इंड पॉइंट M और इंड पॉइंट N, एंगल M और एंगल N. तो इंक्लूडेड साइड इज MN. और एक तरीका देख लो, दोनों का सिर्फ एंगल छोड़ दो, एंगल M, एंगल N, इस एंगल को हटा दो, दिस विल बी MN. सो MN इज द इंक्लूडेड साइड. नेक्स्ट, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, इन दोनों को congruent होना है. Name one additional pair of corresponding part to make them congruent by ASA condition. यहीं पर ध्यान देना है, ASA condition होना चाहिए. यहाँ देखो दिया हुआ है एंगल B इक्वल एंगल Q, दोनों 90 डिग्री है. राइट एंगल, एंगल C इक्वल एंगल R. कंडीशन क्या है? एंगल साइड एंगल. तो दो एंगल तो मालूम है, अब साइड चाहिए. साइड होना चाहिए इंक्लूडेड. जब हम एंगल बोल रहे हैं B एंगल C, अभी मैंने बताया था कि एंगल B एंगल C, तो एंगल को छोड़ दो, साइड कौन सा हो जाएगा? BC. और जब हम बोलेंगे एंगल Q एंड एंगल R, एंगल Q एंगल R, फिर एंगल को छोड़ दो, साइड क्या हो जाएगा? QR. एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल छोड़ दो, साइड BC. एंगल Q और एंगल R, एंगल छोड़ दो, QR. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. AR equal OW, AT equals ON, and angle R equals angle W, angle T equals angle M. The corresponding parts are marked complete. Triangle RAT is congruent to triangle. यहाँ ध्यान दोगे RA, तो R से हम A पर जा रहे हैं. अब RA किसका इक्वल है? WO का. फिर हम AT जा रहे हैं, AT किसका इक्वल है? ON का. इधर से एरो दो, R से A से T, साइड ऐसे जाएगा, तो इधर से भी ऐसे जाएगा. WO से जाएगा किधर? ON की ओर. So triangle RAT equal congruent to triangle WON. RT equal WO, AT equal ON, RAT इधर हो जाएगा WON. This is the required condition. Now next question. ABCD is a rectangle. BD is the diagonal of the rectangle, which all congruence condition criteria can be used to show triangle ABD congruent to triangle DCB. Look here. ABCD. This is a rectangle. और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है. दैट मीन्स ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल डी सी, अपोजिट साइड. ए डी एंड बी सी आर अपोजिट साइड, सो ए डी इक्वल सी बी और बी सी, अपोजिट साइड. डायगोनल बी डी और डी बी कॉमन, सो बी डी इक्वल डी बी. फर्स्ट वाले ट्रायंगल का तीनों साइड, सेकेंड वाले ट्रायंगल का तीनों साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन.
एक कंडीशन पता हो गया। दूसरा देखो, ABCD is a rectangle, so angle A equal 90 डिग्री, एंगल C इक्वल 90 डिग्री। राइट एंगल, इस राइट एंगल के सामने वाला साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। ये कॉमन है, दोनों में है, इक्वल होगा BD इक्वल DB, इधर से BD और इधर से DB, ये हाइपोटेनियस है। अब कोई भी एक साइड ले, AB ले सकते हैं, CD ले सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, या फिर AD और BC ले सकते हैं, ये भी इक्वल है। कोई एक साइड चाहिए, मैंने लिया है AB इक्वल CD या DC। सो these two triangles are congruent by RHS congruence condition. Right angle hypotenuse side. Right angle hypotenuse side. One more step. We know that AB is parallel to DC. अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। दिस विल बी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। एंगल ABD, दिस वन, एंगल CDB, दिस वन, ये दोनों कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इक्वल होता है। एंगल ABD CDB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये साइड BDDB ये कॉमन है, दोनों में है। नाउ दिस वन, एंगल ADB एंगल CBD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल होगा। सो दिस इज एंगल साइड एंगल। Both triangles, triangle ABD and triangle CDB are congruent by ASS congruence condition। 3 कंडीशन हो गया। एक और देख लो, कौन सा बच गया? साइड एंगल साइड एंगल, ये हुआ था एंगल साइड एंगल, ये हो गया है RHS, ये भी हो गया, और एक SSS हो गया। बच गया साइड एंगल साइड, 2 साइड और एक एंगल। किसी भी एंगल को ले सकते हो, एंगल A ले सकते हो, एंगल B ले सकते हो, एंगल D, कोई भी एंगल ले सकते हो। हम यहाँ पर एंगल A ले रहे हैं। इसको बनाने के लिए 2 साइड चाहिए, साइड AB और साइड AD, एंगल साइड साइड। ये राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल, एंगल इसको बनाने वाला साइड साइड। So triangle ABD and triangle CDB both are congruent by side angle side, side angle side. All the 4 conditions, congruence conditions, can be used to prove triangle ABD and triangle DCB congruent. इसको congruent दिखाने के लिए चारों कंडीशन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, all are correct. Okay my dear students, I hope you got it. So like this video and subscribe my channel. Thank you.